ऐसी अलौकिक स्त्री, ऐसी तेजों में स्वयं सिद्धा, युगो युगांतर जब प्रकृति से सहकार करती है। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्विया, भारतीय संस्कृति का मूलाधार बनती है। ऋतुराज वसंत में फूटी कोपलें जब निस्वार्थ फूलों सी मुस्काती हैं। राष्ट्र की धुरी, प्रकृति की सहचरी, भारतीय स्त्री स्मरण हो आती है। भारतीय स्त्री स्मरण हो आती है। नमस्कार, मैं चारू कालरा, स्त्री और प्रकृति संवर्धन, सहकारिता एवं शाश्वत विकास के उत्सव के साक्षी इस पुष्पित सुगंधित गौतम बुद्ध उद्यान में उद्यान समिति व कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की ओर से आए सभी आगंतुकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही अभिनंदन है हमारे मध्य उपस्थित संस्थानों एवं महाविद्यालयों के प्रमुख एवं प्रधानाचार्य, विशिष्ट अतिथिगण, उद्यान समिति के सदस्य, विशिष्ट निर्णायककर्ता, विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों के प्रतिनिधि, माली, छात्र, छात्राएं एवं समस्त दर्शक गणों का आप सबको पुष्प वंदन। Accompanying Dr. Charu in offering a heartfelt greeting, I, Karuna Sharma, extend a cordial invitation once more to all of you to the 66th Annual Flower Show centered around the theme Women Nurturing Nature, a celebration of synergy and sustainability. We are elated to have Department of Music join us in the Flower Festival today. And to mark the beginning of the event, may I request the choir of Department of Music to set the tone for the day with a melodious strain of the Kulgeet. I humbly request everyone to please rise in their seats in respect and sing along, if you may, the Kulgeet of University of Delhi. Jayati Jaya Jaya Jayati Jaya Jaya जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक श्रेष्ठ सुंदर देव दिल्ली विश्वविद्यालय विहंग जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक सकल वसुधा निज कुटुंब की भावना संस्कृति सनातन आधुनिक शिक्षा पुरातन ज्ञान धाराओं का संग दृश्य की स्वाधीनता है भूमि का शतकोटि वंदन निष्ठा धृति सत्यम के मंगल दिव्य भावों का समागम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुप भव्य महाविद्यालयों के परिसरों से चिर सुशोभित श्रेष्ठ गुरुजन कर रहे नित्य छात्र और छात्राएं देश सदचरित्राचार पावन साधना संकल्प संयम नवल वैश्विक चेतना नव क्रांति संस्कारों का उद्गम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुप श्रेष्ठ सुंदर देव दिल्ली विश्वविद्यालय विहंग जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम ज्ञान का आलोक अनुपम ज्ञान का आलोक अनुपम। Thank you, everyone. To graciously receive the dignitaries with utmost honor, may I have the privilege of inviting Professor Rajni Abbi, Chairperson Flower Show 2024 and Proctor, University of Delhi, to extend a heartfelt welcome to the dignitaries and the gathering. Thank you, dear. Respected Honorable Vice Chancellor, Professor Yogesh Singh Ji, Professor Shri Prakash, Director, South Campus, Professor Payal Mago, Director, School of Open Learning, and I should thank Payal ji this time
because this time the flower show is with collaboration of Delhi School of Open Learning, Dr. Vikas Gupta, Registrar, Delhi University, Professor Rupam Kapoor, Secretary, Garden Committee, Anup Latharji, I can see Rajkumar Bhatia ji also sitting, all the principals, head of the departments, deans, and all the flower lovers, I should say. You're all welcome to the 66th Annual Flower Show of Delhi University. I welcome you all to the inaugural ceremony of 66th Flower Show, whose topic this time is Women Nurturing Nature, a celebration of synergy and sustainability. We have 3 guests of honors. Actually, we were supposed to have 3 guests, but one of the guests could not come. And let me introduce those guests also. We have Srimati Lehri Bai, who is known as the Millet Ambassador of India. If she could stand, everybody could clap for her. We have her with us. She has been honored by everyone. She's been part of the Republic Day parade also. She's one of the guests of honor. Second, we had to have Srimati Santosh Devi, who's known for her innovative techniques and sustainable agriculture and organic farming. But we are very sorry she could not join us because there was some tragedy in her family, so she could not join us. We also have Srimati Riva Sood with us, who is known to be an agro-entrepreneur, who has transformed many barren fields into fertile land. So we welcome you, ma'am, in this function. The Flower Show of Delhi University is not merely a display of nature's beauty, but a celebration of our commitment to appreciating and preserving the blossoming gardens around us. We witness the dedication and talent of all our participants who have nurtured these blooms from seeds to splendor. As we wander through the gardens, we also reflect on the parallels between tending a garden and nurturing knowledge. Both require patience, care, and a genuine passion for growth. This flower show is a testament to harmonious coexistence of nature and intellect. As we embark on this floral journey, let us be reminded that just like flowers need sunlight to bloom, our academic community thrives when we foster an environment of openness, respect, and free exchange of ideas. May this flower show serve as a reminder of the beauty that arises when diverse elements come together in unity. In the end, I will finish with a couplet. फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में, आप क्या आए, बहार आ गई मैं खाने में. And because our Vice Chancellor is always using couplets and shairi and poems in his discourses, there's one share specially for him, and that is, उनकी बातों से फूल झड़ते हैं, उनकी बातों से फूल झड़ते हैं, मैंने बात करके देखा है. Thank you. Thank you for your beautiful words, ma'am. We are delighted to present the dignitaries some special products that have been crafted with dedication by the individuals associated with the Namami Gange project. As a token of gratitude and honor, may I request Professor Rajni Abhi, Chairperson Flower Show, to kindly present the souvenirs to the Honorable Vice Chancellor, Sir, thus felicitating him, please. The products in the hamper being presented not only showcase the rich cultural heritage of the region, but also reinforces the commitment of the project to providing employment opportunities to individuals hailing from the Ganga Basin. I request Professor Rupam Kapoor, Secretary Garden Committee, to formally welcome Professor Rajni Abhi, Chairperson Flower Show 2024. In addition to the hampers, the stalls presented to the esteemed dignitaries symbolize women empowerment, meticulously embroidered with intricate kantha work by skilled women personnel, reflecting the spirit of resilience and craftsmanship.
I also request Professor Kapoor to kindly felicitate Director Campus of Open Learning, Professor Payal Mago. Director South Campus, Professor Shri Prakash Singh. Registrar, University of Delhi, Dr. Vikas Gupta. धन्यवाद आप सभी का। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इन्हीं पंक्तियों के साथ इस पुष्प प्रदर्शनी के पीछे का जुगनू, उसका संबल मैं आमंत्रित करना चाहूँगी उद्यान समिति की सचिव प्रोफेसर रूपम कपूर को। Chief guest of the day, Honorable Vice Chancellor, Professor Yogesh Singh Ji, Director South Campus, Professor Sri Prakash Ji, Director Campus of Open Learning, Professor Payal Mago, Registrar, Dr. Vikas Gupta, Chairperson Flower Show and Proctor University of Delhi, Professor Rajni Abhi, Anup Latarji, Professor Niranjan Kumarji, heads of various departments, principals of colleges, distinguished judges of the Flower Show, member of Flower Show Committee, representatives of various schools, colleges, institutes, and representatives from Rashtrapati Bhavan. The annual show is a prestigious tradition of university scheduled every year since 1959. It is a celebration of the beauty of nature, hard work of our gardeners, providing a testament to university's commitment to creating a vibrant and diverse campus community. It is a unique event that provides a colorful and education outreach, creating interest in the role of plants for the environment. The annual Flower Show witnesses active participation from individuals and institutes of public and private sectors and colleges. The event involves competition in various categories of seasonal and exotic flowers, bonsai trees, foliage plants, cacti, succulents, and ferns. Rolling cups, trophies, and prizes are awarded to colleges, schools, and institutions. This year, the annual Flower Show takes on a special significance with its theme, Women Nurturing Nature, a celebration of synergy and sustainability. The theme has been chosen not only to celebrate the landmark Women's Reservation Bill, but also to acknowledge and honor the diverse roles played by women in conservation of our ecosystem. It is an occasion that beautifully intertwines the celebration of women empowerment with their pivotal contributions to environmental sustainability. In the world where narratives of noteworthy environmentalists such as Gaura Devi, Suryamani Bhagat, Amrita Devi, Vasanta Sena, and Ujirao Bai frequently dominate the news,
it becomes extremely important to recognize the invaluable work carried out by women who operate away from the spotlight. While celebrating the undeniably significant contributions of iconic figures through this flower show, we aim to elevate the stories of lesser known, less acclaimed women and ultimately ensure their vital contribution to the betterment of our planet are not only acknowledged but also commemorated. Sir, today we have with us two extraordinary women as our guests of honor, Srushri Lahiri Bai, now recognized as Ambassador of Millets, and Mrs. Riva Sood, also known as Dragon Lady of India, who has contributed immensely towards conservation of biodiversity and promoting organic farming. To further generate awareness and to celebrate contributions of many such women, an inter-college standee competition was organized. I am happy to share that we received a highly enthusiastic response, and the selected ones are displayed in the quadrant dedicated to the theme of the flower show. A slogan writing competition was also organized on the theme, and we received nearly 250 entries in this, and selected very few are displayed on the palm trees. I sincerely hope to carry lot of inspiring thoughts and ideas for a Viksit Bharat that our Prime Minister Shri Modi ji envisions, and beautiful memories with you and loads of pictures in your cameras. Wishing you all a very memorable day with us. Thank you. धन्यवाद प्रोफेसर रूपम। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी प्रोफेसर पायल मागो जी को। आप कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की निदेशक हैं और विभिन्न अकादमिक और सामाजिक आयामों में विभिन्न स्तरों पर हमें प्रेरणा देती रहती हैं, और जो मानती हैं समझ ना आएगा राज़े गुलशन जब तक ना उलझेगा कांटों से दामन। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज के कार्यक्रम के ऑनरेबल चीफ गेस्ट प्रोफेसर योगेश सिंह जी, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट सुश्री लाहिरी बाई, श्रीमती रीवा सूद, और आज जो हमारे बीच में आ नहीं पाई हैं श्रीमती संतोष देवी, प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह, डायरेक्टर साउथ कैंपस, प्रोफेसर रजनी अब्बी, प्रॉक्टर एंड चेयरपर्सन फ्लावर शो, डॉक्टर विकास गुप्ता, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, प्रोफेसर रूपम कपूर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एंड Secretary Garden Committee, heads and principals of various colleges, and dear participants. जब हम इसका थीम सोच रहे थे कि इस बार फ्लावर शो का थीम क्या होना चाहिए, तो मैं और रूपम प्रोफेसर योगेश सिंह के पास कुछ थीम्स लेके गए, और लास्ट में ये थीम लिखा था Women Nurturing Nature, a celebration of synergy and sustainability, और सर ने उसी समय बिना किसी हेजिटेशन के उस थीम को तुरंत टिक किया। तो आज हम सब एक उत्सव मना रहे हैं, स्त्री और प्राकृतिक संवर्धन, सहकारिता एवं शाश्वत विकास का उत्सव। आप सभी का इस उत्सव में बहुत बहुत स्वागत है। अगर मैं बात करूं विमेन की, तो विमेन हैज़ इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस, वेरी हाई इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस। लेकिन जब हम यहाँ शहर में होते हैं तो हम शायद इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाते कि किस प्रकार जो विमेन है, जो गाँव की विमेन है, जो कस्बों की विमेन है, जो पहाड़ों में है, ये सब विमेन कहीं ना कहीं इस इकोसिस्टम पे, इस नेचर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। और अगर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है तो उसकी विक्टिम भी विमेन होती है।
जब मैं बात करती हूँ गाँव की, पहाड़ों की, उन छोटे कस्बों की जहाँ से मेन एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर निकलते हैं, तो पीछे रह जाते हैं बूढ़े और बच्चे, और उनका ध्यान रखने के लिए होती है विमेन, उस घर की औरत, उस घर की महिला, जिसके पास केवल घर की जिम्मेदारी नहीं होती, उसके पास खेत खलिहान की जिम्मेदारी भी होती है, उसके पास पशुओं की जिम्मेदारी भी होती है, उसके पास घर को चलाने की जिम्मेदारी भी होती है, और जो पूरा जंगल, पहाड़ या गांव के खेत उसके आसपास होते हैं, वो कहीं न कहीं उसकी माँ की गोद के समान होते हैं। और ये जो प्रकृति है वो उसको मानती है कि ये मेरा मायका है और इसी से मुझे सब चीज़ें मिलेंगी। मुझे लगता है कि जब हम यहाँ शहर में हैं, जहाँ पर हम मार्केट में जाते हैं और हमें हर चीज़ उपलब्ध हो जाती है, नल खोलते हैं और वहाँ से पानी मिल जाता है, एसी चलाते हैं तो ठंडी हवा आ जाती है, हीटर चलाते हैं तो गर्म हवा आ जाती है, हम ये बात को समझ नहीं पाते हैं कि किस प्रकार हमारा जो परिवेश है, जो हमारी विमेन है, वो किस प्रकार इस प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेना चाहूँगी। 15th सेंचुरी का एग्जाम्पल है उदयमान अंजी ऑफ तेगुदर। ये एक ट्राइबल किंग थे तमिलनाडु में, और जैसे सभी के कोर्ट में कोटियर्स होते हैं, तो उनके कोर्ट में भी कोटियर्स थे, और एक विमेन पोइटस भी कोटियर थी जिसका नाम था अवियार। एक बार ट्राइबल किंग ने कहा कि आप सब लोग मुझे अच्छे से अच्छा गिफ्ट ला के दो, अपने कोटियर्स से कहा। तो आए सब लोग, कुछ बहुत महंगे गिफ्ट लेके आए, कुछ रेशम के कपड़े लेके आए, कुछ ज्वेलरी लेके आए, इस तरह से लेके आए। लेकिन जब ये विमेन पोइटस आई अवियार, और वो उसकी पूरी एक पिक्चर भी उस महल के अंदर आप कभी जाएंगे तो आपको मिलेगी, उसके पास एक थाली थी, थाली के ऊपर रेशम का कपड़ा था, वो लेके आई, और जब उसने रेशम का कपड़ा हटाया तो उसके अंदर आंवला था। उसने कहा, महाराज आपके लिए ये जो आंवला है आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए यही सबसे अच्छा, सबसे महंगा गिफ्ट है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। हम याद कर सकते हैं 15वीं सेंचुरी की अमृता देवी बिश्नोई को, जब जोधपुर के महाराजा ने पेड़ काटने के लिए, उनको महल बनाना था, तो पेड़ काटने के लिए अपने सैनिकों को भेजा, तो जो बिश्नोइयों का गांव था उसमें जो पेड़ काटने के लिए वो आए, तो अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथ साथ उनकी 2 बेटियां उन पेड़ों को बचाते बचाते शहीद हुई, और उसके बाद गांव के बहुत सारे लोग उन पेड़ों को बचाते हुए शहीद हुए। उनके मॉन्यूमेंट्स आज भी वहां पर हैं, और अंत में जोधपुर के महाराजा को वापस अपनी सेना बुलानी पड़ी और उन पेड़ों को वहां छोड़ना पड़ा। और तब से राजस्थान में बिश्नोई कम्युनिटी में एक जो वाक्य है वो मशहूर है, सिर साक्यो रौनक रहियो तो भी सस्तो जान, कि अगर सिर काटने पे भी इस पूरे इकोसिस्टम की रौनक रहती है तो भी हमारी जान सस्ती है। आप याद कर सकते हैं आपतानी ट्राइब की विमेन को। आपतानी ट्राइब जो है अरुणाचल की ट्राइब है, और जहाँ वहाँ ओल्डर विमेन है, वो उस अपने जो ट्रेडिशनल उनका नॉलेज है वो पास ऑन करती है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। अगर आप उसको हाथ में चावल के कुछ दाने लेकर अलग अलग तरह के चावल दिखा देंगे, तो वो उन दानों से आइडेंटिफाई कर देगी कि ये कौन से किस्म का चावल है। अगर आप कुछ पेड़ के पत्ते, कुछ पौधे, कुछ पत्तियां उसको दिखा देंगे, तो वो आइडेंटिफाई कर देगी कि ये कौन सी बीमारी में इस्तेमाल होते हैं, ये कौन सा मेडिसिनल प्लांट है। असम में एक राइस बियर बनाई जाती है, और उस राइस बियर में 101 मेडिसिनल प्लांट्स डाले जाते हैं। वो मेडिसिनल प्लांट्स जंगल से कलेक्ट करने वाली, आइडेंटिफाई करने वाली, उस राइस बियर में डालने वाली वो विमेन ही होती है, और एक तरह से एक बहुत मेडिसिनल प्रोडक्ट वहाँ से प्रोड्यूस होता है। मैं ये मानती हूँ कि नेचर, बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबिलिटी, ये सारे शब्द भले ही वेस्टर्न साइंस की देन हो सकते हैं,
पर इस कंसेप्ट की शुरुआत भारतीय ट्रेडिशनल नॉलेज की ही देन है। हमें जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है जेंडर बेस्ड ट्रेडिशनल नॉलेज पर रिसर्च और एम्पिरिकल डाटा को इकट्ठा करने की। मैं केवल भारत की ही बात कर रही हूँ, लेकिन आप पूरे विश्व में देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स चली हैं जहाँ पर एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, इकोसिस्टम को बचाने के लिए विमेन आगे आई हैं। अगर मैं वो सब नाम भी लेना शुरू करूँगी तो बहुत लंबा होगा, पर एक ही नाम मैं लेती हूँ, वारंगाई मथाई, जो नोबेल लॉरेट भी हैं और कीनिया की ग्रीन बेल्ट मूवमेंट उन्होंने चलाई और 80,000 विमेन को उन्होंने ट्री प्लांटेशन के काम में लगाया। हमारे बीच में लाहिरी बाई हैं जिन्होंने 120 से ज़्यादा मिलेट्स ऐसा सीड बैंक बनाया, और जब मैं दिसंबर में इनसे मिली थी तो इनसे मैंने पूछा आप सीड बैंक का क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो भी मुझसे सीड्स लेने के लिए आता है मैं उसको दे देती हूँ। और मैंने कहा फिर आपको और सीड उगाने पड़ते हैं? कहते नहीं, कुछ लोगों को मैं बोलती हूँ कि आप वापस कर जाइएगा जब आप सीड उगाएंगे, तो वो वापस करके जाते हैं। और मैंने पूछा जब वो वापस नहीं करके जाते हैं तब, तो उन्होंने कहा वो दान हो जाता है। और बिल्कुल एक ट्राइबल एरिया से आके उन्होंने इतने सारे मिलेट्स इकट्ठे करके उनको सीड बैंक की तरह अपने पास स्टोर किया है। हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में ड्रैगन फ्रूट के नाम से, ड्रैगन फ्रूट लेडी के नाम से रीवा सूद जी भी हैं। रीवा सूद जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और रीवा सूद जी ने हमारे कुछ कॉलेजेस को ऑफ़र भी किया था कि आप ड्रैगन फ्रूट अगर ग्रो करना चाहें तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। और अगर आप इनका ड्रैगन फ्रूट देखेंगे तो बिल्कुल लाल और बहुत ही टेस्टी, और ऐसी जगहों पे हो जाता है जहाँ पर पानी की एक बूंद भी ना हो, तब भी वहाँ पर वो ड्रैगन फ्रूट हो सकता है। और आपके माध्यम से ऐसी लैंड रिजुविनेट हुई है जहाँ पर कुछ होता ही नहीं था। आज संतोष देवी जी हमारे बीच में नहीं हैं, पर कोरोना के पीरियड में हमने उनको एक बार ऑनलाइन बुलाया। शायद उनकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने रेगिस्तान में अपने जो खेत थे उनको ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट के ट्रीज लगाए हैं। और आसपास के जितने 10 गांव हैं उसमें हर घर से एक प्लेज कराई है कि जब आपके घर में बेटी की शादी होगी तो आप उसको दहेज में 10 फलों के पेड़ देंगे, और वो बेटी अपने मायके से आए हुए उन फलों के पेड़ों को अपने ससुराल में लगाती है और एक तरह से जो हमारी नेचर है उसको फिर से कंजर्व करती है। उनका भी कंट्रीब्यूशन इस नेचर के लिए बहुत अधिक है। अंत में एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं समाप्त करती हूँ। प्रकृति को हम नारी स्वरूप ही मानते हैं, माँ ही मानते हैं। प्रकृति तुम नारी स्वरूप हो, प्रकृति तुम नारी स्वरूप हो, तभी तो इस युग युग से कवियों ने तुम्हारे स्वरूप को साकार किया है। श्याम मेघ घुंघराले केश तेरे, उसके बीच नीला मस्तक तेरा, चांद सा मुखड़ा तेरा, सूरज सी दमकती बिंदिया, सितारों से जड़ी नीलाभ चुनरी तेरी, चांदनी सी शीतल संगमरमर की मूरत तेरी, हिमालय तेरे मस्तक पर धरा मुकुट सा, हिमालय तेरे मस्तक पर धरा मुकुट सा, कमर में गंगा सी करघनी, सागर की लहरें पायल की रुंझुन जैसी, तुम ही माँ हो। माँ भारती तुम में निहित है, प्रकृति तुम नारी स्वरूप हो, प्रकृति तुम नारी स्वरूप हो। Thank you, Professor Payal Mago. Your words indeed reinforced the thematic essence of the flower show, and we all revisited how women have significantly contributed to the landscape of environment sustainability through the annals of time. The Flower Show Committee takes immense pride in felicitating the distinguished women who have immensely contributed towards nurturing nature and whose standees have been displayed to the left-hand side of the stage. Their dedication to nature inspires us all. Our first guest of honor is Sushri Lahiri Bai, who is celebrated as India's Millet Ambassador.
Lahiri Bai manages a seed bank in her village in Madhya Pradesh and has dedicated the last 10 years in conservation and revitalization of 150 traditional millet varieties. Lahiri Bai's remarkable work in conserving diverse millet seeds in her humble hut has been praised by the Honorable Prime Minister himself. On that note, may I request Honorable Vice Chancellor Sir and Chairperson Flower Show to please felicitate Sushri Lahiri Bai. I also request Professor Payal Mago, Registrar Sir and Shri Prakash Sir to please join. ऐसी ही स्त्रियां कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा दे जाती हैं। करतल ध्वनि से इस पंडाल की ऊर्जा न केवल इनको और सतत ऐसे कार्य करने की ऊर्जा देगी, बल्कि हम सबको भी प्रेरणा देगी। इसके साथ ही मेरा सौभाग्य है कि मैं ड्रैगन वुमेन के नाम से चर्चित शख्सियत श्रीमती रीवा सूद जी का परिचय आपसे करवा रही हूँ। आपने ऊना एचपी में बंजर धरती को किस प्रकार से 17 प्रकार के ड्रैगन फ्रूट्स लगाकर लगभग 3000 से अधिक पौधों के साथ उस बंजर धरती को उपजाऊ किया। विभिन्न सामाजिक संस्थानों और अन्य संस्थानों द्वारा आप सम्मानित की जा चुकी हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फेलो होने के नाते आपने अपने कार्य का डंका विदेश में भी बजा दिया है। आप इस पर ही केवल थमी नहीं, कुछ करने की जिद थी। मेक इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, वोकल फॉर लोकल की। आपने एग्रीवा नेचुरली की फाउंडर बन न्यूट्रास्यूटिकल्स में कदम रखा, जिससे आप न जाने कितने युवाओं को न केवल रोज़गार दे रही हैं, बल्कि उनको प्रेरणा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। अब मैं माननीय कुलपति महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि आपको सम्मानित कर अनुग्रहित करें। करतल ध्वनि से ऊर्जा बनाए रखें। सूर्य देव की ऊर्जा भी बनी हुई है, उसकी कृपा के साथ साथ करतल ध्वनि की प्रेरणा और ऊर्जा की अलग ही बात है। जैसा कि मैंने कहा, इस पंडाल में जो भी इस वक्त घट रहा है, यह सदियों सदियों अमरत्व को प्राप्त होने वाला है, क्योंकि यह स्त्रियां प्रेरणा है हम सब के लिए कि किस प्रकार हम प्रकृति की सहचरी बन, सखी बन अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकती हैं। जैसा कि प्रोफेसर पायल मागो जी ने भी कहा कि भारतीय संस्कृति प्रकृति और स्त्री को एक रूप में ही देखता है। धर्म कारणे सदा सहिष्णु, रणांगणे या सदा जैष्णु, विश्वकार साधने वहतिया, अखंड भागीरथी, जयतु सा भारतीय संस्कृति, जयतु सा भारतीय संस्कृति। ये वंदन है, नमन है भारतीय स्त्री और प्रकृति के सहकार वंदन के साथ साथ पुष्प वंदन के इस अवसर पर भारतीय संस्कृति के वंदन का भी। करतल ध्वनि से एक बार जोरदार अभिनंदन। धन्यवाद। मंचासीन अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद। Thank you, dignitaries. He is an individual who embodies dedication and vision.
tirelessly steering the university towards excellence. With a profound understanding of academic values and a relentless pursuit of progress, our Honorable Vice Chancellor serves as an inspiring figure for the entire university community. We are honored to have him with us today. Sir, may we kindly request the honor of hearing a few words from you, please. Good afternoon, Namaste. Professor Shri Prakash Singh, Director, South Campus, University of Delhi. Professor Payal Mago, Director, Campus of Open Learning. Dr. Vikas Gupta, Registrar, University of Delhi. Professor Rupam Kapoor, Department of Botany and Secretary, Garden Committee, University of Delhi. आदरणीय राजकुमार भाटिया जी, अनूप लाठर जी, प्रोफेसर भारत भूषण जी, प्रोफेसर निरंजन, प्रोफेसर रविंद्र सिंह, प्रोफेसर नीता सहगल, प्रोफेसर अनिल राय, प्रोफेसर संजय रॉय, प्रोफेसर वीबी पांडे, प्रोफेसर गीता भट्ट। अभी क्या है, मैं बहुत सारे छूट जाएंगे, मैं बहुत सारे लिखना जब लिस्ट बनाते हैं ये बड़ा डेंजरस काम है। इसकी बजाय लेडीज़ एंड जेंटलमैन कह के छोड़ देना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग छूटेंगे ही इसमें। My dear faculty members of University of Delhi, principals, head of the departments, deans, distinguished judges, gardeners, malis, officers, officials of University of Delhi, good afternoon to all of you. Good afternoon. सबसे पहले तो आप सभी को बहुत सारी बधाई कि 66 एनुअल फ्लावर शो आज का आयोजन हुआ। तो मैं पूछ रहा था गार्डन कमेटी से कि आप हर साल मनाते हैं, तो मुझे मालूम पड़ा कि हर साल पिछले 65-66 साल से मनाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमने कोविड में भी मनाया इसको। तो एक बहुत अच्छी परंपरा है जिसका कि आपने पालन किया, उसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई। And today's theme is also very interesting. Professor Payal Mago has rightly explained also. Women nurturing nature is celebration of synergy and sustainability. All words are important. Synergy and sustainability, women nurturing nature. So this theme is very inspiring and influencing. So I would like to again congratulate the Garden Committee for selecting such an inspiring theme for 66th Annual Flower Show. Whenever we see flowers, what comes in our mind? The first question is, what comes in our mind? Please close your eyes and think about what comes in our mind. Positivity. Whenever we see flowers, positivity, sensitivity, delicacy, emotions, life, energy, hope, happiness, affection, love, divinity, जीवंतता, सजीवता, अपनापन, उत्साह, उमंग, उल्लास. So many words comes in our mind. But if I have to select one word about this flower show and about flowers, only if I have to explain only in one word, एक छोटी सी मुस्कान फूल की है पहचान. एक छोटी सी मुस्कान फूल की है पहचान. And theme is also very relevant in 2024. Recently our parliament has passed Nari Shakti Vandan Adhiniyam. उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई. हर जगह विमेन है, होनी भी चाहिए, हैं भी, और अब लॉ भी सपोर्ट कर रहा है. तो बहुत अच्छी बात है कि we will see women in the leadership role of our country. Very soon, at least 33%. Women in the parliament and assemblies of our country. I would also like to
congratulate and thanks the Garden Committee, particularly Professor Rupam Kapoor and Professor Rajni Abhi, for such a wonderful flower show. कितना भव्य, दिव्य और सुंदर माहौल है. थैंक यू. कितना भव्य है और कितनी अच्छी बात है. अभी मुझे बताया कि राष्ट्रपति भवन ने भी पार्टिसिपेट किया इस फ्लावर शो में. उनकी भी एंट्री है, उनके भी फ्लावर्स हैं यहाँ पे. और एक जमाने में तो ये जगह जो थी ये राष्ट्रपति भवन टाइप की ही जगह थी. तो अगर आज नई जगह से पुरानी जगह फूल आए हैं तो वो भी सोचते होंगे कि कुछ हम पुरानी जगह आ गए. एक बहुत अच्छी परंपरा हमारी गार्डन कमेटी ने शुरू करी, जिसके लिए कि मैं उनको बहुत ही उनका आभार व्यक्त करता हूं कि स्टेज को सजाने की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय ने फूलों के गमलों से करी. यहाँ ये तो एक इसका डिपिक्शन है, पर आजकल हमने तय किया है कि फूलों को के पॉट से, गमलों से सब जगह सजाने का काम किया जाए, क्योंकि हमने ये भी तय किया कि जीवित फूलों के साथ उत्सव मनाना चाहिए. फूलों को मारकर उत्सव क्यों मनाना है? आप फूलों को मारकर, फूलों को तोड़कर उत्सव क्यों मनाना है? तो आज मैं सोच रहा था कि जब मैं आया तो एक गमले में एक पेड़ लगवाया गया. एक बहुत ही अच्छी परंपरा की शुरुआत है कि जहाँ जगह कम है तो बड़े साइज के गमलों में हमको पौधे लगाने चाहिए. लेकिन कोशिश करें कि फूलों को तोड़ने की आवश्यकता न पड़े. उनकी जिंदगी कैसे लंबी हो, इस पर बात होनी चाहिए. क्योंकि जो हमको खुशी दे रहा है, जो हमको, मैंने इतने सारे शब्द बोले, वो सब दे रहा है, उसको तोड़ना क्यों? ये एक बात है जिस पर कि सबको सोचना चाहिए. और अगर हम एक परंपरा डालेंगे तो मैं मानता हूं बहुत सारे लोग इसको फॉलो करेंगे. इसलिए अगर आप इस पे सीरियसली सोचिएगा कि जीवित फूलों के साथ उत्सव मनाना, जीवित फूलों के साथ, मरे हुए फूलों के साथ नहीं. तो फूल तोड़े नहीं, उनको किस तरह से ट्रांसफर किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, उसमें कैसे मूवमेंट लाई जा सकती है, उस पर विचार करने के तरीके और भी हो सकते हैं. डिफरेंट टाइप के गमले बनाए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम फूल हम तोड़ें. और अगर सजावट की भी बात है, जितनी सारी है, अगर हम गमलों के माध्यम से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा. हमने एक परंपरा शुरू की है कि फूलों का जीवन बढ़ाना, यह हमारा ध्येय होना चाहिए. तो इसीलिए जब किसी को गुलदस्ता मत दीजिए, अगर आपको फूल ही देने हैं तो फ्लावर पॉट दीजिए उसको. कोशिश कीजिए कि आगे से हम फ्लावर पॉट देंगे उसको. प्लांट्स देने का तो आजकल बहुत प्रचलन हो ही गया है, हर कार्यक्रम में प्लांट्स दिए जाते हैं हम लोग. तो अगर फूल देने हैं तो फ्लावर पॉट में दीजिए. उसकी तैयारी कीजिए, वो मिलेंगे बाजार में भी. जब आपकी मांग आएगी तो बाजार में उस तरह के मिलने भी लगेंगे. तो उससे क्या है, 5, 7, 10, 20 दिन, जितने भी दिन एक फूल की जिंदगी बढ़ सकती है, हमें उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए. एक और बात है, जब प्रोफेसर पायल मागो बोल रही थी कि महिलाओं ने पेड़ों को काटने के लिए जीवन दे दिए, कितनी अच्छी बात है. लेकिन क्या होता है, जब आधुनिक विकास होता है तो काटने की आवश्यकता भी पड़ती है. तो मेरे मन में आ रहा था कि अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में हमने सारी परमिशन लेकर आए कि 600-700 पेड़ हमको यहां से ट्रांसफर करने पड़ेंगे. ये जो ट्रांसफर करने का सिस्टम है ना, इस पर भी बहुत विचार करने की जरूरत है. मैं क्यों बोल रहा हूं, और मैंने अभी इंजीनियरिंग डिवीजन को अपने बोला था कि जब आप ट्री ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसकी प्रूनिंग कीजिए, उसको काट मत दीजिए बुरी तरह से. क्योंकि मेरे को दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का अनुभव आया जब हमने पहली बार ट्री ट्रांसप्लांट किए, तो मैंने ये देखा कि वो पेड़ में बचा ही कुछ नहीं था. उसकी टहनी काट दी, डंडी काट दी, सब काट दिया, एक बस उसका तना रह गया और उसको ले जाकर कहीं लगा दिया. लॉजिक ये दिया गया कि जब पेड़ को हम शिफ्ट करते हैं तो उसके पत्ते गिरते हैं, मुरझाता है, तो नई जगह वो पत्ते बाद में आ जाते हैं, आ भी जाते होंगे. लेकिन ये कोई तरीका नहीं है. अगर पत्ते मुरझाएंगे, नेचुरल प्रोसेस में वो दोबारा आएंगे. हमको वेस्टर्न वर्ल्ड से ये सीखना चाहिए. ऐसा नहीं दुनिया के देश नहीं कर रहे. मेरा एक दोस्त है, कैलिफोर्निया में रहता है, मैं उसके घर गया तो उसने बताया कि मैंने 20 साल पुराने पेड़ ट्रांसप्लांट कराए हैं और वो पूरे के पूरे पेड़ आते हैं और वैसे के वैसे लगा दिए जाते हैं. और हमारे यहाँ क्या है, लॉजिक क्या देते हैं कि हमारे पास उस तरह की
क्रेन्स नहीं है जो कि उसको लगा सकें, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, क्योंकि हम आसान रास्ता अपनाना आसान समझते हैं और इमीडिएटली अपनाते हैं। जो इंजीनियरिंग के लोग हैं हमारे ही यूनिवर्सिटी के, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस पे ध्यान दें कम से कम, कि जब हम ये पेड़ ट्रांसप्लांट करें, और दिल्ली में हम सब ने देखा है कि जो ट्रांसप्लांट हुए हैं कितना ज़्यादा पेड़ को काट देते हैं, इतना काटने की आवश्यकता है कि नहीं? वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये नहीं होता है कि पेड़ को इतना काटते हैं। यहाँ पर एक नई टेक्निक्स की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक सोच की बात है सिर्फ कि हम इसके लिए कितने सेंसिटिव हैं। एक घटना मुझे ध्यान आती है, मैं एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा का वाइस चांसलर था। एक बार शायद पहले भी मैंने सुनाई थी कि हमारे वहाँ पे आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट था, तो उसके आगे एक सड़क बननी थी, तो एक पेड़ था। तो एक बार हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो कि बहुत ही सेंसिटिव थे पेड़ों को लेके, वो और उनके साथ में आ गए यूनिवर्सिटी के इंजीनियर, दोनों झगड़ा करते हुए मेरे पास आए। तो उन्होंने कहा कि ये जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ पेड़ काटना चाहते हैं। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा सर पेड़ तो काटना ही पड़ेगा, ये सड़क के बीच में आ रहा है। तो हेड आर्किटेक्चर ने कहा कि सर सड़क के बीच में ये कहाँ आ रहा है, सड़क इसके बीच में आ रही है, ये तो 40-50 साल से ऐसे ही खड़ा है, ये कहाँ किसी सड़क के बीच में आ रहा है। ये बोल नहीं सकता है, अपनी बात नहीं रख सकता, इसके पास कोई वकील नहीं है। मैं इसका थोड़ा वकील बनने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इसने हमको जिंदगी भर दिया है। तो हमको ये ना पेड़ जो है काटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये किसी के बीच में नहीं आ रहा, सड़क इसके बीच में बना रहे हैं ये, वो तो ऐसे ही था। हमारे इंजीनियर साहब ने सोचा कि वाइस चांसलर थोड़े इमोशनल हो रहे हैं, उन्होंने कहा सर कल बात करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है आप कल आइएगा। कल जब आए तो उन्होंने कहा जी मैंने रात को पेड़ कटवा दिया। तो मैंने कहा आपने पेड़ कटवा दिया? कहता सर मैंने परमिशन तो पहले ले रखी थी, मुझे पता था ये हेड आर्किटेक्चर कुछ गड़बड़ करेंगे, तो मैंने परमिशन पहले से ले रखी थी लोकल अथॉरिटीज की, पेड़ कटवा दिया क्योंकि सड़क सीधी रहे। सर पेड़ तो बहुत लग जाएंगे, पेड़ बहुत लग जाएंगे, ये भी ठीक है बात। अब दिल्ली में तय किया कि अगर एक पेड़ को हम हटाते हैं तो उसकी जगह 10-20 पेड़ हमको लगाने पड़ेंगे। पेड़ एक तो होता है कि मिनिमम डिस्टेंस आपके बीच में होना चाहिए, एक ये कि डिस्टेंस की जरूरत ही नहीं है, एकदम पास पास आप लगा दीजिए, पेड़ ग्रो करेंगे। नेचर का लॉ ही नहीं है कि वो जाएं। खैर वो एक्सपर्ट्स हैं, गार्डन कमेटी के लोग सोचें, पर हमें लगता है कि हमको बहुत सारे पेड़ पहले तो तय करना चाहिए, उसके बाद में थिक फॉरेस्ट कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में डेवलप करने चाहिए, और ट्रांसप्लांट जो करना है उसकी टेक्निक की तरफ बहुत सारी बात करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ जो हैं वो तो केवल देने का ही काम करते हैं। मुनव्वर राना की कुछ पंक्तियां हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए। हम सायादार पेड़, सायादार मतलब छाया देने वाले, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। तो हर तरफ जब वो काम आए, और ये तो फ्लावर शो तो एक फेस्टिवल है, और भारत में तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं। कई बार मैंने सोचा कि एक बार देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा ये फूलों की खेती होती कहाँ पे है। मुझे लगा कि कश्मीर में होती होगी, हिमाचल में होती होगी, ठंडी जगह होती होगी, ऐसे ऐसे जगह होती होगी। लेकिन जो डेटा आया निकल के कि सबसे ज़्यादा फूलों की खेती होती है कर्नाटक में, 15-16% कर्नाटक में, और करीब 15% तमिलनाडु में। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है 14% और बंगाल 10%। तो ये जो हमारा नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है, हम तो सिर्फ लगता है कि फूलों का इस्तेमाल करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक वे में हम नहीं करते हैं जो हमें करने की ज़रूरत है। तो हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये दो ऐसी चीज़ हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, और वो जीडीपी में भी बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। The next point is, the theme is the women and nature are closely bound and interconnected. Why? What is the bound? If we have to draw similarities, first word which comes in our mind is compassion. Both are compassionate, nature and women. Caring, sensitive. I recall my grandmother watering daily the tulsi, वाटरिंग पीपल का पेड़, मेंटेनिंग प्लांट्स। एक है कि शौक के लिए मेंटेन करना,
और एक है कि उसको आगे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ाना एज ए प्रोफेशन। दोनों अलग बातें हैं और दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि प्रोफेशन तो बहुत कम लोगों का हो सकता है, पर डेली लाइफ में क्योंकि हम सब ऑक्सीजन तो लेते ही हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको प्रिजर्व करने की तरफ काम करें। इस बार एक पद्मश्री मिला 2024 में नारियल अम्मा को, अंडमान निकोबार से हैं, और उन्होंने सस्टेनेबल कोकोनट प्लांटेशन पे काम किया। तो अभी गवर्नमेंट तो पुश कर ही रही है कि जो भी इनिशिएटिव्स हैं इस तरह के, उनको रिवार्ड दिया जाए, अवार्ड दिया जाए, ताकि उनकी ज़िंदगी से लोग प्रेरणा दें। और आज 2 प्रेरणा के स्रोत तो हमारे यहाँ बैठे ही हैं, जिनमें से हमने देखा सुश्री लहरी बाई जो कि मिलेट एम्बेसडर हैं, और रीवा सूद मैम, और जिन्होंने की ये ड्रैगन फ्रूट एंड ब्लैक वीट। अभी क्या होता है, हमको आदत नहीं होती, मुझे कोई ब्लैक वीट ये गिफ्ट कर गए, मैंने सोचा उसके घर में कहते हैं बहुत फायदे हैं होंगे, तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब उसकी रोटी बनी तो हमको पसंद ही नहीं आई वो, क्योंकि आदत नहीं है उसकी। तो आदत नहीं है, ये जो आदत बदलने वाली बात है इसमें वक्त लगता है, और लेकिन कोई चीज़ सेहत के लिए अच्छी है तो उसको करने में बहुत बुराई तो नहीं है। पर अभी हमारे इस एरिया में तो ब्लैक वीट उतना पॉपुलर अभी नहीं हुआ है, लेकिन थोड़े थोड़े किसान उगाने लगे हैं उसको। और ड्रैगन फ्रूट तो देखो मुझे पता ही नहीं था, मैंने गूगल किया, फिर देखा ये ड्रैगन फ्रूट क्या है। मैडम के बारे में बोल रहे हैं कि ड्रैगन फ्रूट विमेन, तो सब ने कहा कि अच्छा है, गूगल ने भी कहा अच्छा है, तो मैं अच्छा ही मानता हूं कि अच्छा ही होगा, लेकिन उसको खाने की हमें आदत नहीं है अभी। तो आदतें बदलने का भी काम है, एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेके, कि वो फ्रूट्स जो कि हमने सुने हैं, देखे हैं, वही हमको अच्छे लगते हैं जो हम खा रहे हैं बचपन से। नई चीज़ ट्राई करना, ये भारत के समाज में और बहुत कम लोगों में होता है नई चीज़ ट्राई करना, पर अच्छी बात है, नाम ही इसका इतना अलग सा है ड्रैगन फ्रूट। लेकिन ऐसी जिंदगियों से जो 2 लोग आज हैं हमारे, हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी अपनी अपनी जिंदगी में अपने अपने आसपास कुछ कंट्रीब्यूशन करें। एक गार्डन कमेटी से रिक्वेस्ट है कि कुछ वर्टिकल फार्मिंग पे सोचा जाए, कि जितना ये सीमेंटेड हमारा इलाका है, कुछ वर्टिकल फार्मिंग करें। और देखो जहाँ पे सड़क है वो अपनी जगह है, तो या सड़क होनी चाहिए या पेड़ होने चाहिए या घास होनी चाहिए, ऐसे मैदान में मिट्टी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। इसका एक संकल्प हमको लेना चाहिए, जिस कारण से हम सब जगह पर घास लगाएं। और घास लगाने के बहुत सारे फायदे हैं, आज कोई टाइम नहीं है उसका, पर एक थिक प्लांटेशन और एक मास्टर प्लान बनाएं गार्डन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिससे कि हम लॉन्ग टर्म जो है कुछ डायग्नोस्टिकली कर पाएं, कि कल को कोई नई बिल्डिंग बनने को आए, ऐसा ना हो कि 900 पेड़, 600 पेड़, 500 पेड़ हमें ट्रांसप्लांट कराने पड़े, क्योंकि उत्साह में हम हर जगह लगा देते हैं। वो पेड़ हैं, अपने आप भी लग जाते हैं, अपने आप भी लग जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं। ये भी एक देखने के लिए बात है। इसी तरह से फूल, हम कहते हैं जीवन को प्रेरणा देते हैं, तो फूल सुंदर होते हैं, पर अगर फूलों में खुशबू ना हो तो वो कैसे होंगे। इसी तरह से हमारा जीवन है, कि हमारा जीवन अगर फूलों जैसा है लेकिन उसमें खुशबू नहीं है। वो खुशबू किस चीज़ की है? वो खुशबू अच्छाई की, वो अपनेपन की, वो खुशबू हमारे जीवन में मूल्यों की। तो व्यक्ति के जीवन में यदि मूल्य नहीं होंगे, यदि उसके जीवन में अपनापन और अच्छापन नहीं होगा, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की चाह नहीं होगी, तो वो खुशबू नहीं होगी। तो फूल खुशबू के साथ अच्छे हैं तो जीवन मूल्यों के साथ अच्छे हैं। ये एक लेसन है जो कि फूल अपनी जिंदगी में देते हैं। मेरे एक दोस्त हैं पुष्पेंद्र सिंह, वो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि दोस्त कहते हो तो बेवजह मिला करो, दोस्त कहते हो तो बेवजह मिला करो, वजह पे तो व्यापार होता है। तो कभी कभी कोई मुझसे भी मिलने बिना वजह आता है तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि बेवजह मिला करो, मिलने से तो व्यापार होता है। तो वजह अपनी जगह ठीक है, लेकिन बिना वजह भी एक दूसरे से हमको मिलना चाहिए। और वही जिंदगी के फूल हैं जो कि हमारी जिंदगी में खुशी देते हैं। वरना जस्ट लास्ट में मुनीर नियाजी को कोट कर रहा हूं, वो कहते हैं कि इस शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास, शाद होता है खुश रहना, इस शहर का तब्दील होना,
शाद रहना और उदास, रौनकें जितनी भी हैं औरतों के दम से हैं। रौनकें जितनी भी हैं औरतों के दम से हैं, तो आप सबके दम से रौनकें हैं, इसीलिए ये थीम रखा गया। और आप सबके कारण से हम सबकी जिंदगी में जो खुशी होती है, मैं सबकी तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं इसके लिए। ये जो फ्लावर शो है, ये हम सबको खुशी भी देगा, अच्छा बनने का कोई मौका भी देगा। हमको इसमें से अच्छा देखने की कोशिश करनी चाहिए और कुछ ना कुछ नया अपनी ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। वरना गार्डन में तो रोज़ ही जाते हैं, रोज़ घूमते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आज कुछ सोच के जाओ कि हम क्या अच्छा सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी में उसमें इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपकी ज़िंदगी से लोगों को खुशबू आए। ऐसा आप करेंगे तो इस कार्यक्रम को बनाने की भी सार्थकता होगी। गार्डन कमेटी का बहुत बहुत आभार। आप सब आए, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद सर। अपने ज्ञान के गुलशन में हम सरीखे पुष्पों को विचरण करवाने के लिए और हमें प्रेरित करने के लिए, नित नए मौसमों, नित नए विचारों के लिए। पतझड़ की कहानियाँ सुनाकर उदास न कर, नए मौसम का पता बता, जो बीत गया सो बीत गया। आओ कुछ नया सोचें, नया विचारें। अब कार्यक्रम को अंत की ओर ले जाते हुए मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि उद्यान समिति द्वारा विभिन्न श्रेणियों में दिए गए पुरस्कारों में वीसी रेजिडेंस को गार्डन कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज़ और वेजिटेबल गार्डन कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज़ मिला है। तो अभी आप भी यहाँ हैं और करतल ध्वनि से माहौल भी बन सकता है। तो मैं माननीय कुलपति महोदय जी से अनुरोध करूँगी कि आपके वेजिटेबल गार्डन इंचार्ज और रेजिडेंस गार्डन इंचार्ज कृपया वीसी रेजिडेंस आपके 32 छात्रा मार्ग सर, एक बार जोरदार अभिनंदन। माननीय कुलपति महोदय जी को बहुत बहुत बधाई। पुनः स्मरण कराती हूँ करतल ध्वनि हेतु। जो इनकी देखरेख करते हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बनती हैं। पुष्पों की जीवंतता बनाना इतना आसान काम नहीं, उसमें जीवन लगाना पड़ता है। Thank you, dignitaries, and many congratulations to Honorable Vice Chancellor Sir and the winning team. In the gentle embrace of women's hand, nature thrives as synergy expands. A celebration of nurturing souls, sustainability blooms as harmony unfolds. As we wind up the inaugural ceremony, may I behold the pleasure of inviting the backbone of 66th Annual Flower Show, Secretary Garden Committee, Professor Rupam Kapoor, to propose a formal vote of thanks. Ladies and gentlemen, it has been very rightly said, no duty is more urgent than that of returning thanks, and no duty is more endearing than acknowledging the efforts of people who have contributed to success of an event. I deem it a great honor to acknowledge all who have helped us in making this grand annual event of University of Delhi
even grander and propose a formal vote of thanks in their regard. At the outset, I wish to thank Chief Guest, our Honorable Vice Chancellor, Professor Yogesh Singh Ji, for accepting our invitation. Sir, your presence has added grace to the occasion, and there could have been no better occasion to have you with us as chief guests than this event. It is not an exaggeration to say that our celebration as part of university that has turned 100 have been absolutely phenomenal, and none of them could have had the enthusiasm they had without the patronage of Honorable Vice Chancellor, sir. Your constant help and guidance have radiated a source of energy within us. We will ever remain grateful to you, sir, and we thank you for being with us today. Your valuable suggestions on dense plantation and vertical garden have been taken note of, and I'm sure that when we meet next on the 67th Flower Show, we will have something to show you, sir. I would like to thank Sushri Lahiri Bai and Mrs. Riva Sood for accepting our invitation. Your presence here will serve as source of inspiration for many women and students alike. Thank you very much. We also thank their family members for being with us. Hope you have a comfortable stay in DU and carry fond memories of Flower Show and our university. In continuation to this, I express our sincere gratitude to the members of Rashtrapati Bhavan for displaying the choicest exhibits in the Flower Show. We feel honored. I also take opportunity and solicit their continued participation in the following years. I would like to place on record our heartfelt thanks to Director South Campus, Professor Sri Prakash Ji, Registrar Dr. Vikas Gupta, and several other distinguished guests for gracing the occasion with their presence. If time is money, then today you all have spent fortune with us. Thanks to all of you for making this event what it is by gracing the occasion. Thank you very much. I would be failing in my duty if I don't thank everyone who have helped to put this event together. I would like to begin with Professor Payal Mago. It all began with a small conversation over tea at the lawns of Governor House during the launch of Viksit Bharat on 11th December 2024, ma'am. She introduced, when I shared the idea of holding the theme of women and their role in sustainability, she encouraged me and she introduced the possibility of inviting Sushri Lahiri Bai, Srimati Santosh Devi, and many others, and guided me with her expertise in the field of ecofeminism. Thanks a lot, ma'am, for your guidance. Professor Rajni Abhi, Chairperson, Flower Show, Proctor University of Delhi. Words would fall short of describing how supportive and positive she has been throughout. Thank you, ma'am. She has been guiding me through the ridges and troughs and very conveniently allowed me to gate crash her offices and take her time and guidance whenever and wherever required. Thank you very much, Professor Abhi, for putting up with me and coming to my rescue during various episodes. Thank you very much, ma'am, from the core of my heart. I would like to take opportunity to thank Director, Delhi University Computer Center, Professor Sanjeev Singh,
and his staff, Mrs. Seema Sirpal, Mr. Nitin, who continue to post important information on university website to keep everyone informed. I also thank them for ensuring modalities for live telecast, photography, videography, so as to facilitate good coverage and broadcast of the event. I would also like to thank the Engineering Department of University of Delhi, Chief Engineering Officer, Mr. Anupam Shrivastava, and his team for extending right logistic support and lubricating the setting up of the event. Thank you very much. I thank Finance, Estate, Stores, Proctor Office for their cooperation. I would like to thank the distinguished judges representing eminent horticulturists, botanists who have devoted a significant chunk of their time in carrying out rigorous evaluation of all the entries and giving us the winnings in different categories. We owe you a lot, big time. With this, I also thank Delhi University Women Association for putting up a stall, facilitating women empowerment, and I also congratulate them for constantly supporting and working towards improvement of women's political, social, economic, and health status, which is highly important end in itself. I would like to thank students of Acharya Narendra Dev University who would be performing shortly the street play in order to sensitize the visitors about role of women in Chipko movement. With this, I also place my thanks to Biodiversity Park, Dr. Fayaz Ahmed, who unfailingly on every flower show of University of Delhi hoist an education outreach program on biodiversity conservation and sustainable development. Thank you, Dr. Fayaz. I would like to thank Professor Alka Nagpal, Head of the Music Department, for lending their gems to us who performed today with the best of their efforts and soulful voice. I am also grateful to Major Sanjay Sharma, NCC, and the cadets for piloting the chief guests and dignitaries. An event gets tastefully decorated only with active participation from all corners. I hence extend my gratitude to all the participants from various colleges, hostels of university, and other private sectors for their exuberant participation and impressive presentation. Thank you for putting up with our constant emails and reminders that got you all here. Thank you very much. An event of this dimension requires meticulous planning and a bird's eye for every minute to major detail. We have been fortunate enough to be backed by a team of motivated flower show committee. I cannot thank everyone enough, especially Mr. Dabas, Mr. Ravinder, Mr. Om Prakash, Mr. Rajendra Singh, and their staff to willingly take on the completion of tasks beyond their comfort zone. It's now time to acknowledge the efforts of unsung heroes of this event, the Malis. Their arduous efforts have resulted in painting such beautiful colors of spring on university ground. Our greatest support system volunteers, whom I always lovingly address as Tiddi Dal, makes our mammoth task appear a cakewalk. Thank you very much, our dear students, for all the help you have been extending us. As I reflect all this, I feel a deep sense of gratitude for all the hard work and dedication of every member and a renewed sense of hope and aspiration for what lies ahead. Thank you all for becoming part of this program in ways we cannot recognize. Thank you very much.
धन्यवाद मैम। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इन्हीं नए गीतों के साथ आप सब राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हैं। हार्दिक धन्यवाद। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। इसके बाद आप सबसे आग्रह और माननीय कुलपति महोदय और विशिष्ट अतिथियों से आग्रह, कृपया उद्यान यात्रा के लिए अवश्य जाएं और हमारे सारी प्रविष्टियां जितनी भी आई हैं विभिन्न श्रेणियों में, उन सबको प्रोत्साहित करें। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद। वैलेडिक्टरी फंक्शन और प्राइज सेरेमनी के लिए हम सब मिलेंगे 3 बजे पुनः इसी पंडाल में।
हमारी आवाज को समझते ही नहीं है। कितना फालतू का टाइम था उनके पास, बस पेड़ से चिपके तो थे। क्या बताया तुम्हें? तीन चीजें 1900 में हुई थी, पेड़ से चिपके थे और हमें क्या था। हाँ। भैया अगर आपको हमसे ज्यादा पता है ना, आप ही बता दो। कितने पहले? राजस्थान के लाइक जोधपुर के बाद में छोटे से गांव खेजड़ी की एक गांव है। वहाँ की औरतें काफी पूजा अर्चना किया करती थी। एक सेकंड भैया, पेड़ों की पूजा कौन करता है? ये मनगढ़ंत कहानी लग रही है। बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स। इडियट फैक्ट्स है। उस गांव की महिला थी अमृता देवी। उसका उस गांव में बहुत सबसबा था, सबसबा। सबसबा? अरे सबसबा। अच्छा सबसबा। लेकिन इतने सारे लोगों को मारा क्यों? तो विकास के नाम पे कुछ भी करेगा राजा। राजधानी बाद में माफी भी मांगी थी और विकास के नाम पे जरूर मर भी जाते क्या फर्क पड़ता है? भैया सर कैसे जोड़ा हो अब? इसका मतलब आज तक जितने आंदोलन हुए उन सब में लोगों को मार दिया गया। कौन देवी के आने के बाद नाका बिल्कुल बंद हो गई थी। सरकार ने भी बैन लगा दिया था। तो कोरोना के लिए भी पहले उससे पहले वो दिन सदा बमुना और दिल्ली की साइड पर ये क्या है? अच्छा चंदी प्रकाश भाई तो सुंदर लाल बहू मैंने कहा था दादा इकोनॉमी इज आवर बिगेस्ट इंडस्ट्री। इसके बाद इस मूवमेंट का नाम पड़ गया सिक्कू मूवमेंट। ये क्या कैसा नाम है? नहीं पता तुम्हें? अरे नॉनसेंस। इम्प्रेस करना। हमारा तो इतने अपने भाग में है।